हम लोग जो है आज कोलाइडल स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, लोगों ने पहले कैटलिस्ट के बारे में पढ़े, एंजाइम्स के बारे में पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में स्क्लॉइडल स्टेट बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है वो बताएंगे। ये जो कोलाइडल स्टेट है ना, इसका स्टडी जो मेनली किए थे वो थॉमस ग्राहम ने किया था। किन्होंने किया था? थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने किया था। किस साल किया था उन्होंने? इन 1961। थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट थे जो कोलाइडल स्टेट को स्टडी किए थे। ठीक है, और 1961 में ये कोलाइडल स्टेट हमारे सामने आया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो थॉमस ग्राहम बहुत सारा सॉल्यूशंस का स्टडी किए और स्टडी के आधार पे बताया कि जो सॉल्यूट होता है ना, ये दो तरह का होता है ना। पहले तो वो बताए सॉल्यूट जो है दो तरह का होता है। एक का नाम उन्होंने रखा कोलाइड, ठीक है, और दूसरे का नाम रखा क्रिस्टलाइड। ठीक है, दूसरे का नाम रखा क्रिस्टलाइड। उन्होंने बताया कि दो तरह का सॉलिड होता है, एक कोलाइड होता है नेचर में और दूसरा क्रिस्टलाइड होता है। ठीक है, तो उन्होंने किस तरह के सॉलिड को कोलाइड कहा, है ना। तो कोलाइड्स आर द सॉल्यूट which could not pass through the parchment membrane। ठीक है, फिल्टर पेपर का ही होता है पर के तरह ही पर्चमेंट मेम्ब्रेन होता है, जो एनिमल फाइबर्स, एनिमल के बॉडी से बनता है या प्लांट बॉडी से भी बनता है। तो ये देखा गया कि बहुत सारा सॉल्यूट है जो कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं करता है, उसका नाम उन्होंने कोलाइड रखा। ठीक है, उसका नाम उन्होंने कोलाइड रखा। सो कोलाइड्स आर द टाइप ऑफ सॉलिड which could not pass through the parchment membrane. Okay, you can take the example. He said it as collide or glue because it appears like a glue. That's why we say there is a German word kolo. Kolo means glue, and he is a German. Thomas Graham is a German scientist. So that word is kolo, German word, Greek word, whatever you say, that means glue, and that is why the name is given collide, because every collide appears like a glue, so that's why he said like that. Okay, so now example are starch, Anna, we are talking about the starch, all the glue, gelatin. These are the examples. These are the examples of colloid or glue type of solutes. Now he talked about the crystalloid. So crystalloids are the type of solid which pass through parchment membrane. Clear? So they are known as crystalloid. Okay, so crystalloid are the type of solid which pass through the parchment membrane. Examples are sodium chloride, urea, okay, sugar. These are called crystalloid type of solute. So this is the definition. So solid which pass through the parchment membrane are known as crystalloid, and the solute which does not pass through the parchment membrane are called colloid. So this is the
classification given by the Thomas Brown. This is the classification of solute. He studied lot of solutions, and after the studying all the solutions, he came out with an idea that there are two type of solute. One would be called colloid and another is the crystalloid. Okay? So he observed, he classified the solid on the basis, on the difference with which it passes through the parchment membrane. Parchment membrane से पास करता है या नहीं करता है. All the solids which pass through the parchment membrane have been called crystalloid, and all the solid which does not pass through the parchment membrane are called solute. So this is the classification of the solute. But this classification cannot be called a perfect classification, because this classification is not an ideal classification of solute, because sometimes some particle in different situation acts like a crystalloid as well as acts like a colloid also. Sometimes it acts as a colloid, sometimes it acts as a crystalloid. So that is why this classification, later on this classification got vanished. But we should remember this. Then only our concept will get cleared. Okay, to clear your concept, you must know this classification. This is not a wrong classification, but it is not a conclusive classification. It's not a perfect classification, but it is not a wrong classification. Okay. One, you can say this classification is very, very unsatisfactory. This classification, what we talked just, classification of solid is very, very unsatisfactory. Satisfactory नहीं है, confusion होता है, ठीक है ना. तो क्या confusion होता है, तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं. जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन है ना. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इन वाटर. ठीक है, NaCl acts as crystalloid. ठीक है, घुल जाता है पूरी तरह से. जो चीज़ पूरी तरह से किसी चीज़ में घुल जाए वो, तो उस समय उस सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलॉइड बोलते हैं. ठीक है, लेकिन इसी NaCl को ले लो इन बेंजीन. ठीक है, ये बेंजीनॉइड सॉल्यूशन होगा. इन बेंजीन, बेंजीन में देखो. ठीक है, अगर बेंजीन में देखोगे तो NaCl जो है कोलाइड की तरह एक्ट्स एज कोलाइड. ठीक है, सो सेम सॉल्यूट NaCl acts as crystalloid as well as colloid. Whenever we put NaCl in water, then it acts as crystalloid. When we put this sodium chloride in benzene, then it acts as a colloid. तो सेम चीज है, सोडियम क्लोराइड ही है, लेकिन जब पानी में डाल देते हैं घुल जाता है और वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है. लेकिन जब हम बेंजीन में डालते हैं तो फिर वो कोलाइड की तरह बिहेवियर देने लगता है. ठीक है ना. तो ये एक एग्जांपल लिए, एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. डिफरेंट सॉल्वेंट लिए तो डिफरेंट बिहेवियर हो गया. ठीक है, उसके बाद जो है इन वाटर. ठीक है, हम लोग साबुन बहुत यूज करते हैं. वाटर, सोप इज कोलाइड. सोप एक्ट्स एज कोलाइड. ठीक है, सोप जो है पानी में घुलता नहीं है बल्कि वो डिस्पर्स हो जाता है. सोप जो है पानी में घुलता नहीं है बल्कि वो डिस्पर्स हो जाता है और कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है. लेकिन अगर अल्कोहल में डाल दो,
अल्कोहल में सोप एक्ट्स एज क्रिस्टलॉइड, मतलब क्या होगा, अल्कोहल में वो पूरी तरह से घुल जाएगा और वो ट्रू सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करने लगेगा। तो सोप ही है, साबुन है, पानी में वो कोलाइड की तरह बिहेव करता है, जबकि अल्कोहल में वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो सेम सब्सटेंस है जो कोलाइड और क्रिस्टलॉइड दोनों रूप में बिहेव करता है, इसलिए परमानेंटली क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं क्रिस्टलॉइड और कोलाइड में, क्योंकि ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। डिफरेंट सॉल्वेंट होता है तो उसका डिफरेंट बिहेवियर हो जाता है। यहाँ सॉल्वेंट वाटर है तो ये क्रिस्टलॉइड बिहेवियर दे रहा है, यहाँ सॉल्वेंट बेंजीन है तो बिहेवियर कोलाइड है। उसी तरह से अगर यहाँ वाटर है सॉल्वेंट तो सोप जो है कोलाइड का तरह बिहेव कर रहा है, और जब वही सॉल्वेंट अल्कोहल लेते हैं तो ये क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारे साथ ये ऑब्जर्वेशन आया। जब ये ऑब्जर्वेशन आया तो फिर से थॉमस ग्राहम ने आगे और स्टडी किए और फिर वो बताया कि वो जो क्लासिफिकेशन पहले बताए थे क्रिस्टलॉइड और कोलाइड का, वो परफेक्ट सेटिस्फैक्ट्री क्लासिफिकेशन नहीं है। बाद में फिर उन्होंने फिर से क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने कहा कि इस बार जो होगा क्लासिफिकेशन है ना, ठीक है, वो साइज के ऊपर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल, है ना, ऑन द बेसिस classification on the basis of size of particle। तो इस बेसिस पे वो जो है सॉल्यूशन तीन तरह का होता है। ठीक है, वो क्या बताए, इसके बेसिस पे होगा, पहला होगा ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, सॉल्यूट ये होगा साइज ऑफ सॉल्यूट। साइज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, पार्टिकल साइज, साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻⁻⁹ को हम मीटर को हम लोग बोलते हैं 1 नैनोमीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन रहेगा तो जो है साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि कोलाइड कब होगा, तो जब पार्टिकल का साइज जो है 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर से कम होगा, जिसको हम लोग 10⁻⁻⁶ मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल साइज होगा तो उसको हम कोलाइड बोलेंगे। और तीसरा उन्होंने क्लासिफिकेशन किया सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन, और उन्होंने कहा साइज ऑफ पार्टिकल जो होगा, साइज ऑफ पार्टिकल जो होगा ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अगर 1000 नैनोमीटर से पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है तो उसको उन्होंने क्या नाम बताया, उन्होंने कहा ये सस्पेंशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हो गया सॉल्यूशन का। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ, पहले क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट था, पहले क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट था, अब हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब के बेसिस पे हम बोल सकते हैं ना कि कोलाइड जो है, कोलाइड जो है स्टेट है, सब्सटेंस नहीं है। कोलाइड इज नॉट अ स्टेट, क्योंकि अब देखो सोडियम क्लोराइड कोलाइड के रूप में यहाँ एक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड यहाँ क्रिस्टल के रूप में एक्ट कर रहा है, क्रिस्टलॉइड फॉर्म में। उसी तरह से सोप मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड के रूप में फॉर्म कर रहा है, फिर सोप मॉलिक्यूल्स जो है क्रिस्टलॉइड के फॉर्म में भी काम कर रहा है।
तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम यही कर सकते हैं। और साइज ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होता है तो बिहेवियर डिफरेंट। तो ये जो है क्लासिफिकेशन जो सॉल्यूट का है, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड, ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ क्रिस्टलॉइड के रूप में काम करेगा कि कोलाइड के रूप में काम करेगा, ये तो साइज ऑफ पार्टिकल बताता है ना। सोडियम क्लोराइड का साइज ऑफ पार्टिकल जब क्रिस्टलॉइड है तो उसमें सोडियम क्लोराइड का साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होगा लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। वही जब सोडियम क्लोराइड कोलाइड के रूप में काम कर रहा है तो इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ देखो, सोप अगर कोलाइड के रूप में काम करेगा तो सोप पार्टिकल का साइज जो होगा 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। लेकिन वही सोप जब क्रिस्टलॉइड के रूप में काम करेगा देन इट्स पार्टिकल साइज वुड बी लेस देन 1 nanometer. So it is the size of particle which decides whether the solution would exist as true solution or colloid solution or suspension. It is the size of the particle, not the nature of the solute, not the nature of the solute, but it is the particle size of the particle size will decide whether the given substance will exist as a true solution, colloidal solution or suspension. So that is why we under same substance can exist as true solution as well as colloid. Like in case of crystalloid means true solution. Sodium chloride, this one is a true solution, whereas when you put any sodium chloride in benzene then it becomes colloid. So it's not a true solution, it's a colloid. So it is not the solid which decides whether it is a colloid or crystalloid, but it is the size of the particle which decides whether the given solution will exist as colloid or true solution or suspension. क्लियर। तो साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर डिसाइड करते हैं ना। तो कोई भी चीज कभी कोलाइड भी हो सकता है और क्रिस्टलाइड भी हो। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस। सो कोलाइड कोई सब्सटेंस नहीं है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस होगा। सो कोलाइड इज ए not a substance, but colloid is a state of substance, because sodium chloride exists as crystalloid as well as colloid. So what is the substance? Substance is your sodium chloride, but sodium chloride is existing as crystalloid as well as colloid. In the same way here we can see soap exists as colloid as well as crystalloid. So substance cannot decide whether it will exist as a colloid or crystalloid, but the size of the particle decides. Apart from this, what we have learnt here, that colloid is not a substance, but it is a state of substance. So we can say that colloid is a state of substance, but it is not a substance. Clear? So colloid is a state of substance, not a substance. So on the basis of all these things, we can say that. Okay. Thus, on the basis of above discussion, the discussion what we had just now, we can say that colloid is not a substance, but it is a state of substance, which depend upon the molecular size. So this is a very important observation. One may ask you and it is explained to you. ठीक है।
तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बता दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। फेजेज ऑफ कोलाइड। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो सिंगल फेज सॉल्यूशन होता है, उसमें कोई दो फेज, एक फेज से ज़्यादा नहीं होता है। सस्पेंशन भी मोर देन वन फेज होता है, और कोलाइड्स में भी वन फेज होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होता है, इन सॉल्यूशन सॉल्यूट गेट डिजॉल्व्ड, ठीक है, dissolved and sprayed throughout the solvent, ठीक है। और कोलाइड में क्या होता है, कोलाइड में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज get dispersed throughout the dispersion medium, ठीक है, ठीक है, get dispersed and spread, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। और कोलाइड में क्या होता है, ये डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब हुआ कि फैल गया। अच्छा, डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व का मतलब होता है कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो है ना सॉल्वेंट का, उसमें सॉल्यूट एकोमोडेट हो जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूट get accommodated in the interparticle space of solvent, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें वो नहीं होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस में नहीं जाता है, वो हटा हटा करके, ठीक है। हियर dispersed phase makes up space between the dispersion medium, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है ना, वो सॉल्वेंट के इंटर पार्टिकल स्पेस में अकोमोडेट कर जाता है, ठीक है। तो हमको पता नहीं चलता है, लेवल भी नहीं बढ़ता है। लेकिन कोलाइड में क्या होता है कि उसका पार्टिकल साइज इतना है कि इंटर पार्टिकल स्पेस में जा नहीं सकता है। तो क्या करेगा, पार्टिकल को दूर दूर भगाता है और बीच में चला जाता है। जैसे बहुत भीड़ है, हमको जाना है, तो क्या करेंगे, हम आदमी को हटा करके बीच में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि उस दोनों आदमी के बीच में हम नहीं जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों आदमी को इधर पुश करेंगे, इसको भी इधर पुश करेंगे और बीच में हम चले जाएंगे। ये होता है कोलाइड में, ठीक है। फिर बगल वाला दो आदमी है, उसको वैसे पुश करेंगे, उसके बीच में जाएंगे। इधर भी दो आदमी है, उसको पुश करेंगे, उसके बीच में चले जाएंगे। तो ये हो गया क्या, हम बाहर का आदमी आके डिस्पर्स हो गया, सब जगह फैल गया, आदमी को हटा हटा गया। दूसरा प्रोसेस क्या है, आदमी सब खड़ा है, लेकिन हमारा पार्टिकल इतना छोटा है कि हम आराम से गए, उस दोनों के बीच में आराम से बैठ गए, उसको पता भी नहीं चला, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो हो गया हमारा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है ना,
सॉल्वेंट के इंटर पार्टिकल स्पेस में जो जगह खाली है उसमें जाके अकोमोडेट हो जाता है, इसलिए कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, कोलाइड में इसका जो डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज कोलाइड में किसको बोलते हैं, सॉल्यूट को ही हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और सॉल्वेंट जो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं सॉल्यूशन में, कोलाइड में हम उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल को इधर पुश किया, इधर पुश किया, बीच में खाली जगह बना, अब वहाँ जाके अकोमोडेट होगा। इसी तरह से सब जगह वैसा ही करेगा, पूरे पूरे कोलाइड सॉल्यूशन में ही करेगा, पार्टिकल सबको हटाते जाएगा, उसके जगह पर आते जाएगा। एक तरह से वो लोग पुश करके हटा के बीच में आ गया, या वो जगह खाली करवा दिया, तुम हटो हम यहाँ बैठेंगे, तुम हटो हम यहाँ बैठेंगे, इस तरह से करते करते पूरे में फैल गया। इसी को बोलते हैं कोलाइड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें कोई फेज नहीं है, सॉल्यूशन में कोई फेज नज़र नहीं आता क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस में अकोमोडेट हो जाता है, तो अलग अलग लेयर नहीं दिखता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, चूँकि इंटर पार्टिकल स्पेस में तो जाता नहीं है ना, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल को पुश करके रिप्लेस करके जाता है, जिसके कारण अलग अलग फेज दिखाई देता है। इसलिए दोनों फेज का डिस्कशन करेंगे। तो कोलाइड में क्या फेज होता है, डिफरेंट फेजेज होता है, फेजेज ऑफ कोलाइड। ठीक है, तो फेजेज ऑफ कोलाइड में पहला क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्स्ड फेज इज द component present in a small proportion, and is just like a solute in a solution। ठीक है, दूसरा डिस्पर्सन मीडियम, दूसरा क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, इज द कंपोनेंट present in excess and is just like solvent in solution। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम क्या हुआ, ये एक तरह का कंपोनेंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे सॉल्यूशन में पढ़ाते हैं, सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि बोलते हैं कि जो कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में वो सॉल्यूट हो गया, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट हो गया। उसी तरह से कोलाइड में भी जो कम क्वांटिटी में है वो डिस्पर्स फेज हुआ, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो डिस्पर्सन मीडियम हुआ। यानी डिस्पर्सन मीडियम वही हो गया जो जिसको हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्यूट बोलते हैं, और डिस्पर्सन मीडियम वही हो गया, डिस्पर्सन मीडियम वही हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट इन केस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को पढ़। अगर एग्जांपल लेंगे, जैसे कोलाइड ऑफ सिल्वर लेंगे, तो इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सिल्वर हो गया, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो वाटर हो गया। अगर कोलाइड ऑफ सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज हो गया सिल्वर और डिस्पर्सन मीडियम हो गया वाटर। ठीक है,
बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होता है ना बहुत सारे बेसिस पे होता है, बहुत तरीके से होता है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट of dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो दोनों के फिजिकल स्टेट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स मिलता है ना, 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स ऑन बेस फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो हम लोग लिखते हैं डिस्पर्सन, पहले हम इधर जो है लिख देते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे टाइप ऑफ कोलाइड। ठीक है, और उसके बाद इधर जो है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम लोग ये इधर हो गया डिस्पर्स्ड फेज, ये हो गया डिस्पर्सन मीडियम, ये हो गया टाइप ऑफ कोलाइड। ठीक है, ये टेबल हमारा बन गया, अब इधर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्पर्स्ड फेज जो है सॉलिड लेते हैं। डिस्पर्स्ड फेज पहला सीरियल नंबर 1 सॉलिड लिए और डिस्पर्सन मीडियम भी जो है सॉलिड लिए, दोनों ही सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करोगे तो सॉलिड ही दिखेगा, सॉलिड को सॉलिड में आपस में मिक्स करोगे तो सॉलिड ही दिखेगा। तो ज़्यादातर जो टाइप ऑफ कोलाइड्स होगा ना वो डिस्पर्सन मीडियम भी होगा, क्योंकि ये एक्सेस क्वांटिटी में, डिस्पर्सन मीडियम एक्सेस क्वांटिटी में रहता है, डिस्पर्स फेज जो है लेस क्वांटिटी में रहता है। तो जो एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा उसी के ऊपर तो डिसीजन होगा ना कि ये किस तरह का जो है ये कोलाइड्स बनेगा। ठीक है, तो चूँकि डिस्पर्सन मीडियम ज़्यादा है और ये सॉलिड ही है और ये भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, इसलिए टाइप ऑफ कोलाइड भी क्या होगा, सॉलिड ही होगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल इसका नाम पड़ गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, जितना भी अलॉय है। ठीक है, अलॉय हो गया। उसके बाद जेम स्टोन हो गया, अंगूठी है ना, जेम स्टोन अंगूठी सब जो बनता है इसमें जो पत्थर सब रहता है, बहुत ही कलरफुल पत्थर सब रहता है, वो सारा जेम स्टोन है। ठीक है, जेम मतलब मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद जो है कलर्ड
ग्लास हो गया, है ना, विंडो वगैरह में लगता है कलर्ड ग्लास। और उसके बाद जो है रूबी, एक रूबी पत्थर आता ही है, रूबी ग्लास। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, ठीक है। दूसरा लेंगे, दूसरे में जो है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज जो है अभी भी हम सॉलिड ही रखेंगे, और डिस्पर्सन मीडियम इस बार जो है हम लिक्विड कर देंगे। तो डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है। अब लिक्विड जो है ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया, क्योंकि ये डिस्पर्सन मीडियम है तो लिक्विड है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिजिकल स्टेट इसी का चलेगा, तो ये लिक्विड के जैसा ही दिखेगा, लेकिन उसमें सॉलिड जो है मिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम हो गया SOL, है ना, याद रखना है, सॉलिड इंटू लिक्विड। ये हो गया सॉलिड इंटू सॉलिड, सॉलिड सॉल मतलब सॉलिड इंटू सॉलिड, SOL मतलब सॉलिड इंटू लिक्विड, ठीक है। तो अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेंट, है ना, घर द्वार को पेंट करते हैं ना आजकल, पेंट हो गया। हमारे सेल में जो है फ्लूइड होता है, सेल फ्लूइड, हमारे बॉडी में जो सेल है, प्लांट में जो सेल है उसमें फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड भी इसी के इसमें आता है ना, जिसमें कि जो है सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर, स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर, एक एग्जाम्पल ये हो गया। उसके बाद जो है गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल, है ना, गोल्ड सॉल मतलब गोल्ड को जो है लिक्विड में डिजॉल्व किए हुए, गोल्ड को लिक्विड में डिजॉल्व किए हुए, गोल्ड सॉल हो गया। ये सब एग्जाम्पल हो गया। गोल्ड सॉलिड होता है और उसका जो डिस्पर्शन मीडियम है, कोई लिक्विड है, उसमें इसको घुलाया हुआ है, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो है, और एक चीज़ याद रखना है, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका जिसको हम कवर कर रहे हैं, है ना, इसलिए हम स्टार लगा दिए। बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो गया हमारा कि डिस्पर्स्ड फेज जो है, डिस्पर्स्ड फेज जो है, अब हम लोग डिस्पर्स्ड फेज तो अभी भी सॉलिड ही रखेंगे, डिस्पर्स्ड फेज अभी भी सॉलिड रखेंगे। अब इस बार गैस में इसको डिजॉल्व करेंगे, यानी गैस ज़्यादा है सॉलिड कम है, तो इसका नाम हो गया एरोसॉल। इसका नाम हो गया एरोसॉल, यानी गैस ज़्यादा है सॉलिड कम है, सॉलिड को गैस में मिलाया गया है, सॉलिड को गैस में मिलाया गया है। जैसे कि आंधी तूफान आता है ना, तो उसमें गैस में जो है धूल मिट्टी सब उड़ते उड़ते आता है, वही हुआ एरोसॉल हुआ। आंधी तूफान के समय जो धूल भरी आंधी जो आता है ना, वो एग्जाम्पल हो गया एरोसॉल का, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हवा में सॉलिड पार्टिकल मिक्स हो गया, जो मिट्टी वगैरह मिक्स हो गया, पत्थर का टुकड़ा मिक्स हो गया, किस में, हवा में मिक्स हो गया, तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसॉल, ठीक है। तो एरोसॉल का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्मोक हो गया, धुआं जितना भी है। स्मोक में क्या है, सॉलिड पार्टिकल जो है गैस में मिल गया है। स्मोक का मतलब क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल, कार्बन का जो पार्टिकल्स होता है वो स्मोक में, ये गैस में मिल जाता है, तो उसको हम लोग स्मोक बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो है स्मोक है डस्ट, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म, है ना, धूल भरी आंधी, ठीक है। उसके बाद हेज, हेज, हाँ, हेज किसको बोलते हैं, हेज का मतलब होता है जैसे कभी सुबह सुबह उठते हैं तो पूरा जो है हमको उजला उजला दिखता है, आमने सामने कोई बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे सुबह उठे तो देखते हैं कि धूप थोड़ा कम लग रहा है, धूप नहीं के बराबर है, और लगता है जैसे कि सब जगह उजला उजला धुआं फैला हुआ है। धुआं नहीं है लेकिन लगेगा जैसे वाइट वाइट धुआं फैला हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेज, है ना। मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, गर्मी रहती है, धूप कम रहता है,
लेकिन वो हेजी हो गया, मतलब सामने दिखता नहीं है, सामने थोड़ा दूर दिखता है, उसके आगे फिर नहीं दिखता है, उसी को बोलते हैं हेज, है ना, जिसको हिंदी में धुंध भी बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग हेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि गैस ज़्यादा है, सॉलिड कम है, गैस में सॉलिड को डिजॉल्व किया गया है। तो हम लोग जरा चौथा टाइप देखते हैं। तो ये तो हो गया कि सॉलिड को हम लोग सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों मिल गया। अब जो है चौथा जो हम लोग लेंगे, डिस्पर्स्ड फेज जो है, अगली बार लिक्विड ले लेते हैं। डिस्पर्स्ड फेज जो है सॉलिड लिए थे हमेशा, इस बार जो है लिक्विड लेंगे और उसमें हम लोग सॉलिड को घुलाएंगे। ठीक है ना। डिस्पर्स्ड फेज जो है लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज जो है लिक्विड है, यानी ये कम है, और सॉलिड में इसको घुला रहे हैं, यानी लिक्विड जो है डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, सॉलिड ज़्यादा है, और ये लिक्विड जो है कम है सॉलिड में। तो ये क्या होगा, सॉलिड है तो जेल, क्रीम, जेल ये सब टाइप मिलेगा, क्योंकि इसमें सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड कम है, तो क्रीम और जेल सब मिलेगा इसी में, तो इसका नाम रख दिया जेल, क्योंकि सॉलिड ज़्यादा है और लिक्विड कम है, गीला गीला लगता है। तो ये हो गया हमारा जेली, है ना, जेली हम लोग खाते हैं, जेली हो गया एग्जाम्पल। बटर हो गया, बटर भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद चीज़ भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है बूट पॉलिश है ना, जूता का जो पॉलिश लगाते हैं जूता में, ये सब एग्जाम्पल इसी का है। ठीक है, बूट पॉलिश हो गया, और कर्ड, तीसरा क्या हो गया, कर्ड। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, एक जो सॉल इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये जेल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लाइफ में ज़्यादा यूज होता है, डेली लाइफ में यूज होता है ये सब, सॉल का, जेल का। तो जेल कब हो जाता है, जब सॉलिड ज़्यादा रहेगा और लिक्विड कम रहेगा। ठीक है ना, जब डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा, तब ये होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 तरह का डिस्कस कर लिया, अब आगे डिस्कस करेंगे। अब जो है हम लोग 5वां डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5वें में हम लोग अभी तो डिस्पर्स फेज हम लोग रखे हुए हैं लिक्विड। ठीक है ना, डिस्पर्सन मीडियम हम लोग लिए थे पिछला बार भी, और अगली बार जो है डिस्पर्सन मीडियम लेंगे लिक्विड। पिछला बार जो डिस्पर्सन मीडियम था, ठीक है, जो जेल था, तो डिस्पर्सन मीडियम क्या था, सॉलिड था। इस बार लिक्विड लिए, डिस्पर्सन मीडियम इस बार बदल दिए। अब जब लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स होता है ना, तो इसका नाम है, नाम अलग है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन। इसको क्या बोलेंगे, इमल्सन, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिल्क है। मिल्क हो गया, हेयर स्प्रे हो गया। ठीक है, हेयर स्प्रे हो गया, हेयर स्प्रे नहीं हो पाएगा, हेयर क्रीम ले सकते हो, हेयर क्रीम। ठीक है, हेयर क्रीम हो गया। उसके बाद इमल्सिफाइड ऑयल होगा, इमल्सिफाइड ऑयल मतलब 2 डिफरेंट ऑयल को आपस में मिक्स करते हैं, तो उसको बोलते हैं इमल्सिफाइड ऑयल, है ना। 2 डिफरेंट ऑयल्स को आपस में जब मिक्स कर देते हैं, उसको बोलते हैं इमल्सिफाइड। ठीक है, तो ये मतलब दोनों ही चीज़ लिक्विड है, इसमें जो है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज दोनों ही लिक्विड है, इसलिए फाइनली हमको लिक्विड के रूप में ही दिखेगा, इसलिए इसका नाम दिया गया इमल्सन। बेस्ट एग्जांपल इसका मिल्क हो गया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए
ये हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 जो हम स्टार लगाए हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसका। अब जो है नेक्स्ट लेते हैं 6th वन। तो डिस्पर्स्ड फेज जो है अभी भी हम लिक्विड ही रखेंगे, ठीक है। अब लिक्विड में सॉलिड मिला दिए, लिक्विड में लिक्विड मिला दिए हैं, है ना। अब इस बार ये डिस्पर्स फेज लिक्विड है, तो इस बार जो है हम लोग डिस्पर्सन मीडियम जो है गैस रखेंगे। डिस्पर्सन मीडियम गैस रखेंगे, मतलब गैस ज़्यादा है लिक्विड कम है, गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है, तो फाइनली ये गैस के रूप में ही दिखेगा। क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो गैस ज़्यादा दिखेगा, तो गैस के रूप में ही दिखेगा। लेकिन गैस में जो है लिक्विड मिक्स हो गया, गैस में जो है लिक्विड मिक्स हो गया, तो फाइनली ये गैस के फॉर्म में ही दिखेगा क्योंकि गैस ज़्यादा है। इस तरह के सॉल का नाम है एरोसॉल, ठीक है, इसका नाम है एरोसॉल, ठीक है। तो एरोसॉल हो गया, तो इसमें जो है मिस्ट, ठीक है, मिस्ट हो गया, फॉग हो गया। ज्योग्राफी में पढ़े ही हो गया कि मिस्ट क्या होता है, फॉग क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, ठीक है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी हो गया, गैस है ना, तो स्प्रे, जो भी स्प्रे है सब इसमें आएगा एरोसॉल में। जितना भी स्प्रे टाइप का कोई भी चीज़ रहेगा वो सब इसमें आएगा एरोसॉल में, है ना। मार्केट में बहुत सारा स्प्रे, हेयर स्प्रे भी मिलता है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, हेयर स्प्रे। इंसेक्टिसाइड है, हेयर स्प्रे भी इसमें आएगा, हेयर स्प्रे, क्योंकि इसमें गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है। अब 7वां हम देखते हैं, 7th में डिस्पर्स्ड फेज जो है, अब हम लोग गैस लेते हैं। डिस्पर्स्ड फेज इस बार गैस लेते हैं, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज को। और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो गया, यानी सॉलिड ज़्यादा है और गैस कम है, सॉलिड ज़्यादा है और ये गैस कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल बोलेंगे इसको भी। तो 2 तरह का सॉलिड सॉल है, एक तो सॉलिड इनटू सॉलिड है, तो सॉलिड ही दिखता है इसलिए उसको सॉलिड सॉल बोलते हैं, जो सबसे पहला बताया। और फिर गैस को हम सॉलिड में देंगे तो भी ये सॉलिड के जैसा ही दिखेगा, लेकिन ये सॉफ्ट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी सॉलिड सॉल ही बोलते हैं क्योंकि ये भी तो सॉलिड ही दिखेगा, लेकिन ये सॉफ्ट होगा। जो पहला वाला बताए थे वो थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन ये जो है थोड़ा, ये सॉलिड सॉल जो है थोड़ा सॉफ्ट होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है प्यूमिस स्टोन। ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा कि प्यूमिस स्टोन क्या होता है। प्यूमिस स्टोन बहुत ही हल्का होता है, इवन पानी के ऊपर भी डूबता नहीं है, तैरता रहता है, ठीक है ना। प्यूमिस स्टोन का जो यूज होता है ना, पानी जब बॉयल होता है तो उछल उछल के बाहर आता है ना, बम्पिंग होता है। टू प्रिवेंट दैट बम्पिंग, टू टेक केयर ऑफ दैट बम्पिंग, प्यूमिस स्टोन पानी में डाल दोगे तो जो बॉयल होगा वाटर तो उछलेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जो है फोम रबर, है ना, वो वाला रबर जिसको ऐसे दबाने से दब जाता है। सीट वगैरह बनता है ना गाड़ी वगैरह में, व्हीकल्स वगैरह में सीट बनता है, बैठते हैं, है ना, सोफा बनता है, गद्दा, बैठ जाते हैं तो एकदम दब जाता है, वही हुआ फोम। तो फोम रबर जो है एग्जाम्पल है जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज जो है गैस है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम जो है सॉलिड है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल और है 8th वन, ठीक है ना। तो 8th वन में क्या है कि ये जो है डिस्पर्स्ड फेज जो है ना, डिस्पर्स्ड फेज हम गैस रखेंगे और डिस्पर्सन मीडियम इस बार जो है लिक्विड दे देंगे। डिस्पर्सन मीडियम इस बार क्या हो गया, लिक्विड दे देंगे, ठीक है। यानी इस बार डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है तो लिक्विड ज़्यादा नज़र आएगा। डिस्पर्सन मीडियम में गैस को अगर लिक्विड में देंगे तो लिक्विड के जैसा ही नज़र आएगा। इसका नाम बोलते हैं फोम। इसका नाम क्या बोलते हैं, फोम, है ना। झाग वगैरह जहाँ बनता है वो सब इस कैटेगरी में आता है, जहाँ भी झाग बनेगा, जैसे सोप लेदर हुआ,
सोप लेदर हुआ, ठीक है। हाँ, फ्रोथ हो गया, फ्रोथ मतलब जो झाग बनता है। व्हिप्ड क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, दूध से क्रीम निकालते हैं ना, दूध को ऐसे 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 करते रहते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने का सारा क्रीम आ जाता है, तो वो हो गया व्हिप्ड क्रीम, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो भी एग्जाम्पल आएगा, सोडा वाटर। जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स है सब में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें घुलाया हुआ रहता है, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स है सब में कार्बन डाइऑक्साइड घुलाया हुआ रहता है, तो वो हो गया सोडा वाटर, सोल्ड नहीं, सोडा, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर। जितना भी कोल्ड ड्रिंक है सब इस कैटेगरी में आएगा, इसी कैटेगरी में, ठीक है। अब जो है क्लासिफिकेशन हम फिर और एक तरह से करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है, रटने वाला चीज़ है, रट सकते हो, ठीक है। अगली बार जो क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, नेचर ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, यानी इसमें सिर्फ हम डिस्पर्सन मीडियम का ही देखेंगे, है ना, इसमें सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम का ही देखेंगे। डिस्पर्सन मीडियम का ही देखेंगे, डिस्पर्स फेज का नेचर को नहीं देखना है, सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम। तो हम सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर क्लासीफाई करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम, और इधर जो है नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर है, ठीक है, तो उस तरह के कोलाइड का नाम होगा हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल होगा। अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है हाइड्रोसॉल होगा, या एक्वासॉल, या एक्वासॉल हो गया। नहीं, डिस्पर्सन मीडियम वाटर रहा तो, अगर डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल रहा, ठीक है, तब हो जाएगा एल्कोसॉल, तब इसको बोलेंगे एल्कोसॉल, ठीक है। अगर डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन रहा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेंजोसॉल, ठीक है। और अगर डिस्पर्सन मीडियम एयर रहा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एरोसॉल, ठीक है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम को ही हम लोग देखते हैं। सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम के नेचर के ऊपर अगर हम डिसाइड करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो इस तरह से क्लासीफाई करेंगे। वाटर रहेगा तो हाइड्रोसॉल बोलेंगे, अल्कोहल रहेगा तो एरोसॉल बोलेंगे, बेंजीन रहेगा तो बेंजोसॉल, एयर रहेगा तो एरोसॉल। सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम का देखना है फिजिकल स्टेट, है ना, और उसी के ऊपर डिसाइड करेंगे, है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। तो सिर्फ नेचर हम लोग देख रहे हैं किसका, डिस्पर्सन मीडियम का देख रहे हैं, और जो है डिस्पर्स फेज का कुछ भी नहीं देख रहे हैं। डिस्पर्सन मीडियम क्या है उसके ऊपर नाम दे रहे हैं। वाटर है तो हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल, अल्कोहल है तो अल्कोसॉल, बेंजीन है बेंजोसॉल, एयर है तो एरोसॉल, तो ये नाम रखना है। तो ये दो तरह क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ लिए। अब आगे जो है और भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे जो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।